Hello students, today I am going to teach a new topic, phylum Porifera. Porifera means pore bearing animals or pore bearing organisms. They have number of minute pores on their body. तो इनके जो मेन फीचर्स के अपन बात करें तो दे आर एक्वेटिक, मोस्टली they are live in marine water and few in fresh water such as spongilla. Next, they are sessile. Sessile means remain attached to any object. किसी भी ऑब्जेक्ट से ये चिपके हुए रहते हैं. Most of the members of this phylum are asymmetrical. Asymmetrical means any plane which pass through the center of the body cannot divide the organism into two equal parts. So most of the members are asymmetrical. They are diploblastic and have cellular level of body organization. They are diploblastic and have cellular level of body organization. Next, body wall have two layers. Outer is called pinnacoderm and inner coinoderm. Outer layer pinnacoderm, inner layer coinoderm. Pinnacoderm is consist with pinnacocytes and coinoderm is consist with coinocytes or collar cells, and they are flagellated cells. Collar cells are flagellated cells. A non-cellular membrane is present between the pinnacoderm and coinoderm is called mesohyl. Is called mesohyl, present between the pinnacoderm and coinoderm. And different types of amoeboid cells are moved towards the mesohyl. अब जो अमीबोसाइट्स है, पहले भी अपन ने कहा दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आर्कियोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, थेजोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, chromocytes, myocytes, and different type of cells are present in the members of Porifera, such as archaeocytes are
totipotent cells. They have totipotency. It means they have capacity to develop into any type of cells. So, due to presence of archaeocytes, the members of Porifera have great power of regeneration. The trophocytes, food store. Thyrsocytes, distribution of food. Scleroblast, they form skeleton. Chromocytes, they are pigmented cells. Myocytes, they are muscle-like cells. So that the different type of cells are present in sponge, and each cell is specific for their function. अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि बॉडी वॉल आ गई, उसके बाद में बॉडी कैविटी. Generally, these members of Porifera are also known as sponge, body cavity, is called spongocele or पैरागैस्ट्रिक कैविटी. स्पंजोसेल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी. नेक्स्ट, दे हैव नंबर ऑफ minute pores on body. These minute pores are called ostia, and a large pore is present at the free end of the body, which is called ओस्कुलम. यानी बॉडी पर जो बहुत सारे माइन्यूट पोर हैं वो तो ओस्टिया, और जो टिप के ऊपर फ्री एंड पर जो बड़ा पोर है ओस्कुलम. थ्रू ओस्टिया वाटर इज एंटर्स इनटू बॉडी. ओस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर वाटर एंटर होगा और ओस्कुलम के थ्रू वाटर आउट होगा. इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स are present in the member of Porifera. The canal system is Ascon type, Sycon type and Leucon type. Ascon type is simplest type. It means outer water through ostia enters into incurrent canal through prosopile radial canal through apopyle spongocele through osculum आउट. तो एक वाटर करंट चलता रहता है. जैसे वाटर है ओस्टिया के थ्रू, ये ओस्टिया के थ्रू आया इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से कहाँ चला गया, स्पंजोसेल के अंदर चला गया. ये इस तरह से है ना, ये डबल लेड बॉडी वॉल. तो ओस्टिया थ्रू इनकरेंट कैनाल, एपोपाइल प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल, एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसेल, और ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा. दूसरा साइकोन टाइप. साइकोन में क्या होगा, द आउटर वाटर थ्रू ओस्टिया इनकरेंट कैनाल, it is Sycon type and it is Leucon type. Outer water through ostia, incurrent canal, prosopile के थ्रू flagellated chamber,
and through apopyle, excurrent canal, and through osculum आउट। तो दो तरह के हो गए, साइकॉन और ल्यूकॉन। नेक्स्ट है एस्कॉन। एस्कॉन में आउटर वाटर थ्रू ओस्टिया, स्पंजोसील, थ्रू ऑस्कुलम and out. So there are different type of canal system is present in sponge: ascon, sycon and leucon. Ascon, sycon and leucon. Ascon is simplest type of canal system in which outer water enters into spongocele through ostia और osculum के थ्रू बाहर चला गया। साइकॉन जिसमें आउटर वाटर ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में और ओस्कुलम के थ्रू बाहर। ल्यूकॉन टाइप में क्या होगा? आउटर वाटर ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में, प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, एपोपाइल के थ्रू एक्सक्रेंट कैनाल में और ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होगा? द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, excretion, all the process are completed through the canal system, or we can say that the canal system helps in nutrition, respiration and excretion. The canal system helps in nutrition, respiration and excretion. The canals and spongocele are lined by collar cells, and the collar cells are flagellated cells. तो कैनाल और स्पंजोसील किससे लाइन है? फ्लैजिलेटेड सेल्स, दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स। नेक्स्ट, ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन is present. Intracellular digestion means digestion takes place inside the cells. So intracellular digestion. Next, they have internal skeleton made up of calcareous spicules or siliceous spicules और स्पॉन्जिन फाइबर्स। दे हैव इंटरनल स्केलेटन जो या तो कैलकेरियस स्पाइकुल से बना है, जो मोनो एक्सोन, बाई एक्सोन, ट्राई एक्सोन, टेट्रा एक्सोन किसी प्रकार के हो सकते हैं, या फिर सिलिशियस स्पाइकुल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ, इनमें इंटरनल स्केलेटन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल, बोथ asexual and sexual reproduction is present. Asexual reproduction is by फ्रेगमेंटेशन, यानी बॉडी के जितने फ्रेगमेंट बन गए उतने नए जीव बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन, और बाई जेमुलेशन. Gemulation is a bird-like structure present inside the paragastric cavity and becomes free
through the osculum and develops into new sponge. तो asexual reproduction फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, जेमुलेशन से हो सकता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, internal fertilization is present, and indirect development, indirect development, larval stage is present during their development, and इनके लार्वा एम्फीब्लास्टुला and एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला लार्वा इज प्रेजेंट. जैसे साइकोन में एम्फीब्लास्टुला है, ल्यूकोसोलेनियम में पेरेन्काइमुला है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. अब देखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्केलेटन द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है. क्लास फर्स्ट, कैलकेरिया, जिनका इंटरनल स्केलेटन किससे बना है? कैलकेरियस स्पाइक्यूल से. इनके एग्जांपल देखेंगे अपन. ल्यूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट स्पंज, साइकोन, साइफा जिसको बोलते हैं. सेकंड जो क्लास है वो है हेक्साक्टेनिलिडा. इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पाइक्यूल्स such as Hyloneema, also called glass rope sponge. Euplectella, Venus, flower basket, and bridal gift in जापान. तीसरी जो क्लास है डेमोस्पंजिया. इंटरनल स्केलेटन इज कंसिस्ट विद स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड सिलिशियस स्पाइक्यूल्स सच एज स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पंजिया, बाथ स्पंज. तो देखिए, द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा are divided into 3 classes on the basis of their internal skeleton. Class Calcarea, class Hexactinida and class Demospongia. और उनके अपन एग्जांपल्स देखें तो देखें, कैलकेरिया में आके ल्यूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट स्पंज, साइकोन, साइफा. हेक्साक्टिनिडा में हाइलोनिमा, ग्लास रोप स्पंज, यूप्लेक्टेला, विनस फ्लावर बास्केट. इनमें क्या होगा कि एक स्टेम है जिनमें मेल और फीमेल लाइफ, पूरी लाइफ में इसके अंदर सिम्बायोटिक लाइफ व्यतीत करते हैं. यूप्लेक्टेला में इट इज गिवन एज ए ब्रिडल गिफ्ट इन जापान. डेमोस्पंजिया, जिसके एग्जाम्पल हो गए स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पंज और यूस्पंजिया बाथ स्पंज. तो ये अपने पढ़ा क्लास, डिफरेंट क्लासेस किसमें? पोरीफेरा में. और फाइलम पोरीफेरा के फीचर्स और फीचर्स के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स. अब इसमें स्पेशल क्या आया कि एक तो इनमें इंटरनल स्केलेटन है,
दूसरा, बॉडी पे बहुत सारे पोर्स हैं। तीसरा, इनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। एक ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इंटरनल डाइजेशन, यानी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसको बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। इसके अलावा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा बनते हैं एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमोला। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा।